Assalamu alaikum. A very good afternoon to all of you. First of all, happy Independence Day. My honorable teacher and dearest student and my chief guest, I extend a very warm and hearty welcome to each one of you all here. It's a beautiful afternoon. You know, my dearest student, why it's a beautiful afternoon? You know that? Because you all are looking amazingly nice, gorgeous, handsome, wonderful. So, I would like to thank all you taking the time out from your heavy schedule and making this particular evening with you glorious presents. Thank you so much. मैं आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो नाउ ये थी हमारी HU कॉलेजिएट के चमकते सितारे जो यहाँ पर खड़े होकर इस इंडिपेंडेंस डे को जी रहे थे, इस सेलिब्रेशन को जी रहे थे। You know, I am very shocked today and I thanks to Allah and I am associate such a beautiful organization which is the name is HU Collegiate. Such an amazingly student where are standing in front of me. Please clapping unke लिए. And today I am very surprised when I stood from below the stage to see how my student enjoying this day through singing, through performance and so many other things. So I am very proud to say that these are my students. Thank you, Roj and Misbah. So please put your hand together for Roj and Misbah for this wonderful effort. आज के इस जोश को देखकर मुझे ये लगा कि मुझे भी अपने स्टूडेंट्स के लिए एक स्पीच करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा माशरा है वो माशरे लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाना कि इंटर कर लिया या मैट्रिक कर लिया और लड़कियों को कह दिया जाता है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते या लड़कियां अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। तो इसी पर एक थोड़ी सी बात को कहना चाहूँगा आप सबके लिए। देखो बेटा, dear my students, sacrifice leads and gains follow. Don't look for any gains where there is no sacrifices. Don't look for your games to improve. Don't look for your record to improve. Without sacrifice, there is no gains. You know exactly what you want. You know exactly when you want it. You know exactly what it teach alike. You know exactly what it tastes alike. You know exactly what it feels like. Before you really blow up and you get a success. You gotta know what it teach like, smells alike and looks like. But if you don't, you are compromises. If you aren't and you believe on yourself, no one can change that. You know that winners complain. Winners always complain. Winners wanna hear themselves talk. But the champion do not complain because they are focused what they say. They are focused what they wanted to do as a dream. You are not putting energy. You are not commanding your gift. You are not commanding your opportunity. You are not commanding your resources. You are not commanding your dreams and your goals. You're looking at them joker every 3 months if that. You better be looking at them joker every day. अभी तक मैंने जितनी भी बात कही ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में और सक्सेस के बारे में की, इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लो, दैट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, इसलिए ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। ख्वाब देखो, उस पर हार्ड वर्किंग करो, जब भी आप सक्सेसफुल होगे, जब भी आप कामयाब होगे। थैंक यू सो मच। तख़य्युल ने बर्र-ए-सग़ीर में गूंज मचाई तो फिर इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसके मिटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई। कभी सिंध तकसीम गलत करना तो कभी कश्मीर का तनाज़ा, हर एक लिहाज से इस वतन अजीज़ को मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इकबाल का खौफ था, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी। ये मुल्क और इस मुल्क की बुनियादें में नौजवानों का खून शामिल है। इस मुल्क की बुनियादों में हमारी बहनों और माओं की इज्जत और इस्मत शामिल है। ये ऐसी बुनियादें नहीं हैं जो मिट जाएंगी,
ये वो मुल्क नहीं है जो ख़त्म हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में मैं एक ऐसे बच्चे को पेश करने जा रहा हूँ कि नौजवान आज भी खड़े हुए हैं इस बॉर्डर पर, सरहदों पर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अपनी तालियों की गूंज में वेलकम करें अब्दुल समद को कि वो आए अपने मुल्क के इस कौमी तराने के मफहूम के अपने सामने पेश करें। बैठ जाए। मैं बाकियों की तरह इतना जोशीला स्पीच नहीं कर सकता, आप सुकून से बैठ के सुने और समझे बातों को। आज मैं बहुत ही अहम मौजू पर बात करने लगा हूँ। हम लोग जो है बचपन से लेकर 55 तक एक कौमी तराना सुनते हुए आ रहे हैं। आज तक हमने कभी सोचा कि इसके बारे में क्या है, बस हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। कभी सोचा इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, किसने लिखा है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हर बंदे को हासिल करना चाहिए। कोई भी चीज़ है वो इल्म के बगैर मुकम्मल नहीं। आज हमारे टीचर्स इतने मेहमान आए हुए हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट, हम खुद पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं प्लस पढ़ भी रहे हैं। चाहिए हम इल्म हासिल करें। हम लोग जो है इतने दिनों से, इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी समझने की कोशिश नहीं की, ना मैंने ना आपने। और क्यों कोशिश नहीं की, इसका जवाब ना मेरे पास है और ना आपके पास। मैं इस मफहूम को बयान करने लगा हूँ और आप लोग इसे सुने और समझें कि ताकि आप लोग जब दोबारा कभी सुने तो आप लोगों को भी समझ आए कि हम सुन क्या रहे हैं, हमें बोला क्या जा रहा है, हम खुद पढ़ क्या रहे हैं। पाक सर ज़मीन शादबाद, ए मुक़द्दस ज़मीन तू हमेशा सलामत रहे, हमेशा खुशहाल रहे। किश्वर हसीन शादबाद, हमेशा बसती रहे मेरी खूबसूरत ज़मीन। तू निशान अज़्म आलिशान, तू बुलंद और हिम्मती का निशान है। अर्ज़े पाकिस्तान मेरी पाक सरज़मीन। मरकज़ यकीन शादबाद, ईमान का ये मरकज़ हमेशा कायम व दायम रहे। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत अख़ुवत अबा, इस मुल्क का निज़ाम, इस पर रहने वाले लोग, उनकी आपसी मोहब्बत है, उनकी भाईचारगी और इत्तेहाद, इन सब से हमारा मुल्क चलता है। अगर यही ना रहे तो फ़ायदा, मुल्क हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाना है। आने वाले कुछ सालों में मुल्क हमारा रहना ही नहीं है। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद। ये कौम, ये मुल्क, ये सल्तनत हमेशा रोशन रहे। शादबाद मंजर मुराद, और अपने हर मकसद में यूं ही खुशहाली के रास्ते में चलते हुए हासिल करना है। परचम सितारो हिलाल, ये चांद सितारे वाला परचम है। पाकिस्तान का झंडा कब तख्लीक हुई इसकी, एनीबडी नो? 11 अगस्त को। 11 अगस्त 1947। बिल्कुल ठीक जवाब दिया सर ने। रह बरे तरक्की व कमाल, हमारी तरक्की और उरूज का रहनुमा है। तर्जुमाने माजी शान हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए जुल जलाल। ये हमें हमारे शानदार माजी की याद दिलाता है, आज हमारी अज़मत को बयान करता है, और यही हमारे आने वाले कल की क़ुव्वत बनेगा। और हम इस कौम के लिए अल्लाह ताला की हिफाजत मांगते हैं। लेकिन आज हम जिस रास्ते में गामज़न हैं, क्या हमें ऐसे मिलेगी अल्लाह पाक की हिफाजत? क्या अल्लाह पाक हमसे खुश है, हमसे राज़ी है? नहीं। हमें जिस मकसद के लिए मुल्क दिया गया हम तो वो कर ही नहीं रहे। खैर, बात को यही बयान करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से कि मैं नहीं समझा सका। अस्सलामु अलैकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ HU कॉलेज के ओनर सर हामिद उस्मान और उनके स्टाफ का। तो ये 14 अगस्त के बारे में मैं कुछ बताऊँगा आप लोगों को, जो शायद बहुत ही अहम साबित है आप लोगों के लिए। देखिए, आज़ादी तो आज हम मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुमलिकत है और हम अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस आज़ादी को। लेकिन मैं एक सवाल करूँगा आपसे कि हमारी एक आज़ादी जो अभी तक हमारे दिल से नहीं निकली है और हमारे माशरे से नहीं निकली है, और वो है जहालत की आज़ादी। एम आई राइट? जहालत की आज़ादी अब तक हमारे अंदर से निकली नहीं है। आप अभी यहाँ से बाहर जाओ, कोई ना कोई ऐसा शख्स आपको ज़रूर नज़र आएगा जो ऐसी हरकत कर रहा होगा जिससे आपको लगेगा ये जाहिल है। ठीक है, हम तो स्टूडेंट्स से, टीचर से, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम उस ट्रैक पे चले जाते हैं।
मैं आपको टोंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं और ये होना चाहिए इंसान के अंदर कि 14 अगस्त हो तो इंसान उसको अच्छे से सेलिब्रेट करे। बॉयज़ और गर्ल्स में सबको बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल मानो। तो अब मैं एक और टीचर को दावत देना चाहूँगा, HU कॉलेज से मिस इकरा को। प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज, मिस इकरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हैप्पी इंडिपेंडेंस के हवाले से कुछ वक्त आपका लूँगी। सबसे पहले अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो तल्ख़ी सही लेकिन हकीकत पर मुबनी है। हम पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं? मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे बाबा वटेवर कुछ भी चाहिए, पाकिस्तान मिल गया और क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया लेकिन पाकिस्तान हासिल करने का मुकाम हम भूल चुके हैं। अभी तो असली इम्तिहान बाकी है कि अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दूसरा आप ही के लिए कहना चाहूँगी, मत पूछिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना मानूंगी हार चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी कौम से नहीं, किसी नस्ल से नहीं, किसी वतन से नहीं, अपने बुजुर्गों से वादा किया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान। Thank you so much everyone. किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पर सजाए फिरते हैं तुझे, लोग होठों पर सजाए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। सो प्लीज वेलकम द ओनर ऑफ HU कॉलेज, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वेलकम सर हामिद उस्मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा ने मुझे बहुत तारीखों के बाद जो है वो बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमजा। हमारे यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो टोकी जाती है और वो है लड़कियों के हवाले से कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लड़कियाँ हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। HU कॉलेज शुरू दिन से हमारे यहाँ पे लड़कों की तादाद हमेशा कम रही है और लड़कियों की तादाद हमेशा मैक्सिमम रही है, क्योंकि हमारा विजन ही यही है, मेरा खुद का विजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जितनी भी लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं वो दुनिया में अपना नाम करें, हमारे कोचिंग का नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम और रोशन करें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितनी तालीम दी है, ठीक है, वो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं यहीं से इजाज़त चाहूँगा। सबने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और साथ ही साथ बहुत ही मेहनत की, जिसमें हमारे जो है वो कुछ स्टूडेंट्स रहे, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर जो है वो 1 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी में जो है वो अपना वक्त दिया, ठीक है, काफ़ी देर तक कोचिंग सेंटर में रहे, घर वालों से जो है वो डांट खाते रहे, लेकिन इस प्रोग्राम पे जो है वो अपनी पूरी जान दी, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं स्पेशली बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत ही मेहनती सर हमजा का। जो मेहनत ये आज सामने दिख रही है, ये मेहनत कुछ नहीं है। जो मेहनत इन्होंने अभी तक की है, ये मेरे साथ रात के 2-2 बजे तक रहे, ठीक है। मेरी मेहनत कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ पैसे लगाए, ठीक है, और साथ में घूमा हूँ बस।
जो मेहनत की है, जो लिखा है, जो कुछ किया है, वो सब कुछ सर हमजा ने किया है। मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा आप लोग सारे खड़े होकर सर हमजा के लिए क्लैपिंग करें। सर हमजा, सर हमजा। Thank you so much for your appreciation. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम। समझे न कोई गाफिल हमको, समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। तो मैं HU कॉलेजिएट की तरफ से केक सेरेमनी के लिए बुलवाना चाहूँगा HU कॉलेजिएट के तमाम ऑनरेबल स्टाफ को कि वो स्टेज पर आकर इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की केक सेरेमनी करें। थैंक यू। क्लैप कर दें HU कॉलेजिएट के स्टाफ के लिए। फाइनली ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सारे लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे परफॉर्मेंस देख के काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। परफॉर्मेंस की और सिंगिंग हुई, डांसिंग हुई, टैबलो हुआ और फिर केक कटिंग भी हुआ, जो आप लोगों ने सब कुछ देखा है। और फ़िलहाल अब जो है मतलब जिन लोगों को फ़ोटोशूट करवाना था वो फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर सर वगैरह हैं और सारे लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। तो मैं तो नहीं करवाना, खैर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, शायद बोर भी हो जाओ आप लोग देखते देखते, पर उम्मीद करता हूँ ठीक रहेगा। थैंक यू।